یہ کہانی ہے ایک ایسی چوری کی جو مقدس ترین مقام سے ہوئی، ایک ایسا راز جو صدیوں تک پردوں میں چھپا رہا۔ حجر اسود، خانہ کعبہ کا وہ حصہ جسے نبیوں نے چھوا، ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ کون تھا وہ گروہ، کیسے کی گئی یہ دل دہلا دینے والی چوری، اور یہ پتھر واپس کیسے آیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں محب الاسلام 44، جہاں پردہ اٹھے گا ایک سنسنی خیز حقیقت سے، تو تیار ہو جائیں کیونکہ اب سچ چھپے گا نہیں۔ یہ جنوری 930 کی بات ہے جب مکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس زمانے کی پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلافت عباسیہ اندرونی اختلافات سے متاثر تھی جب مکہ میں داخل ہونے والے ایک گروہ نے کعبہ حجر اسود اکھاڑ لیا جسے مسلمان مقدس سمجھتے ہیں۔ تاہم یہ گروہ حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گیا اور اگلے 22 برس تک واپس نہیں آ سکا۔ یہ گروہ مکہ کیوں آیا اور حجر اسود کو کہاں لے گیا؟ ان سوالوں کے جواب جاننے سے قبل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حجر اسود کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ حجر اسود کے لغوی معنی سیاہ پتھر کے ہیں۔ سرخی اور سیاہی مائل زرد رنگ کے اس بیضوی پتھر کا قطر تقریباً 30 سینٹی میٹر ہے اور یہ کعبہ کے جنوب مشرقی کونے پر دیوار کے ساتھ زمین سے کوئی 5 فٹ کی بلندی پر نصب ہے۔ علی شبیر تاریخ حجر اسود میں لکھتے ہیں کہ اسے سنگ اسود، رکن اسود، سیاہ گوشہ حجر اور رکن بھی کہتے ہیں، جو طواف کے آغاز اور اختتام کی علامت ہے۔ یہ بالکل سفید رنگ کا تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 870، مسند احمد کی حدیث نمبر 2792 اور نسائی کی حدیث نمبر 2935 کے مطابق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ حجر اسود جسے خانہ کعبہ کی زینت تصور کیا جاتا ہے اور جسے بوسہ دینے یا ہاتھ کا اشارہ کیے بغیر طواف کعبہ کو نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلے قبیلہ بن جرہم کے متعلق تاریخ میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے حجر اسود کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد اگرچہ کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی ضرورت پیش آئی، مکہ کے قبائل جرہم اور عمالقہ وغیرہ نے اس کو تعمیر کیا، مگر حجر اسود کے متعلق صرف اس واقعہ کا پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کے متولی بنے۔ ان کے بعد ثابت بن اسماعیل کو متولی بنایا گیا، پھر ان کے نانا مزاج جرہمی متولی بنے اور کچھ عرصے تک قبیلہ جرہم میں تولید چلتی رہی۔ جب بنو بکر نے، جو اولاد اسماعیل میں سے تھے، قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکال دیا تو قبیلہ جرہم کے رئیس عمر بن حارث نے اس خیال سے کہ کعبہ کی پیش قیمت اشیاء دشمنوں کے ہاتھ نہ لگیں اور جب کبھی کعبہ پر دوبارہ ان کا قبضہ ہو جائے تو ان کی چیزیں ان کو واپس مل جائیں، حجر اسود کو کعبہ سے اکھاڑ کر اور بہت سے ہتھیار جو مختلف لوگوں نے کعبہ پر چڑھائے تھے اور شاہان فارس کا چڑھایا ہوا سونے کا ہرن، یہ سب چیزیں زمزم کے کنویں میں چھپا دیں اور مٹی وغیرہ ڈال کر زمزم کو زمین کے برابر کر دیا۔ اس کے بعد اگرچہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمزم کا کنواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کھود کر برآمد کیا تھا، مگر یہ پتہ نہیں چلا کہ زمزم کا دفن شدہ سامان جس میں حجر اسود بھی تھا ان کے ہاتھ آیا تھا یا نہیں۔ بہرحال جب قریش نے کعبہ کی تعمیر شروع کی تو اس وقت حجر اسود کعبہ میں موجود تھا، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ زمزم سے اس کو کس نے اور کب نکالا تھا اور تعمیر سے پہلے اس کو کعبہ میں کس نے نصب کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے یزید بن معاویہ کی موت کے بعد خلافت کا دعویٰ کیا اور مکہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ عبد الملک بن مروان، جو اس وقت اموی خلیفہ تھے، انہیں ختم کرنے کے در پہ تھا اور اس مقصد کے لیے حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا۔
हज्जाज बिन यूसुफ ने 692 ईस्वी को एक बड़े लश्कर के साथ मक्का का मुआसरा कर लिया और शहर पर शदीद बमबारी की। उसने मंजनीकों के जरिए बैतुल्लाह पर हमला किया, जिससे काबा की दीवारों को नुकसान पहुंचा। इस हमला में कई सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो और ताबीन शहीद हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ की फौज ने काबा पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे न सिर्फ गुलाफ काबा को आग लग गई बल्कि खाना काबा की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा और मंजनीक का पत्थर लगने से हजर असवद के 3 टुकड़े हो गए। 7 ज़िलहज सन 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमान करामती ने मक्का पर कब्जा कर लिया। खौफ व हरास का ये आलम था कि इस साल हज भी ना हो सका, कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। ये इस्लाम में पहला मौका था जब हज बैतुल्ला मौकूफ हो गया। अबू ताहिर करामती ने हजर असवद को खाना काबा से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। अबू ताहिर करामती मक्का से लूटा हुआ माल और हजर असवद बहरीन के एक शहर मकाम हजर ले गया और इस शहर का नाम भी हजर असवद जाने के बाद मकाम हजर पड़ा। वहाँ करामती ने अपना काबा बनाया, जिसे वो दारुल हुजरा कहा करता था। उसका ख्याल था कि हाजी हजरा असवद की वजह से उसके बनाए हुए काबा में आने लगेंगे और उसने उस बारे में बड़ी कोशिश की। मक्का के रास्ते बंद कर दिए, जो 319 हिजरी से 327 हिजरी तक बंद रहे और अपने बनाए हुए काबा की तरफ लोगों को घेर कर लाना चाहा, मगर वहां कोई ना गया। जामे लतीफ तारीख मक्का में है कि करामती ने हजर असवद को ले जाकर वहां की जामे मस्जिद की 7वें सतून में उसे लेकर लटका दिया था कि हज्जाज इस तरह मुंतकिल हो जाएं। हजर असवद 22 साल तक वापस नहीं आया और 22 साल वहां लटका रहा। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदर बिलाला ने अबू ताहिर करामती के साथ फैसला किया कि वो उसे हजर असवद के बदले 30,000 दिनार देगा। तब हजर असवद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 329 हिजरी को हुई। गोया 22 साल तक खाना काबा हजर असवद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजर असवद को वापस किया जाएगा, तो उस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलम मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को हजर असवद की वसूली के लिए एक वफ्द के साथ बहरीन भेजा गया। अलामा सेवती की रवायात के मुताबिक जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो हजर असवद की वापसी के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। एक पत्थर खुशबूदार खूबसूरत खुलाफ से निकाला गया कि ये हजर असवद है, उसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, हजर असवद में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर उस मेयार पर उतरा तो ये हजर असवद होगा और हम इसे ले जाएंगे। पहली निशानी ये कि ये पानी में डूबता है, दूसरी ये कि आग से गर्म नहीं होता। अब इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो डूब गया और फिर उसे आग लगाई गई तो वो सख्त गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। फरमाया ये हमारा हजर असवद नहीं। फिर दूसरा पत्थर निकाला गया, उसके साथ भी यही अमल हुआ और वो पानी में डूब गया और आग लगाने पर गर्म हो गया। फरमाया ये भी असल हजर असवद नहीं है। फिर मजबूरन उनको असल हजर असवद देना पड़ा। पानी में डाला गया तो तैरने लगा और आग लगाई गई तो बिल्कुल गर्म ना हुआ और उस वक्त वो पत्थर वहां से वापस मक्का लाया गया। उस वक्त अबू ताहिर करामती ने ताज्जुब किया और कहा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया ये बातें हमें जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजर असवद पानी में डूबेगा नहीं और आग से गर्म नहीं होगा। अबू ताहिर करामती ने ये कहा कि ये दीन रवायात से बड़ा मजबूत है। इसी तरह 363 हिजरी में एक रूमी शख्स ने अपने कुल्हाड़े से हजर असवद पर ज़रब लगाई, जिससे उस पर चटकने का एक वाज़े निशान पड़ गया। उसने दूसरी शदीद ज़रब लगाने के लिए जैसे ही अपने कुल्हाड़े को उठाया, अल्लाह ताला की मदद आन पहुंची और करीब ही मौजूद एक जमनी शख्स ने, जो उसकी घिनौनी कार्रवाई देख रहा था, उसे फौरन कत्ल कर डाला और उसकी हजर असवद पर दूसरी ज़रब लगाने की ख्वाहिश दिल ही में रह गई। 413 हिजरी में फातिमियों ने अपने 6 पैरोकारों को मक्का भेजा, जिनमें से एक अल हाकिम अल अवीदी था, जो एक मजबूत जिस्म का मालिक था। सुनहरे बालों वाला तवील कदो कामत वाला इंसान था। वो अपने साथ एक तलवार और एक लोहे की सलाख लाया था।
अपने साथियों के उकसाने पर उसने दीवानगी के आलम में ताबड़तोड़ 3 ज़रबें हजरे अस्वद पर लगा डाली, जिससे उसकी किरचियां उड़ गईं। वो हज़ियानी कैफियत में ओन फूल बिकते हुए कह रहा था कि माज़अल्लाह, जब तक वो उसे पूरा ना उखाड़ फेंकेगा तब तक सुकून से ना बैठेगा। उस मौका पर एक मर्तबा फिर अल्लाह ताला की मदद आन पहुंची और घोड़ सवारों के एक दस्ते ने उन सब अफराद को घेर लिया और उन सब को पकड़कर कत्ल कर दिया और बाद में उनकी लाशों को भी जला दिया गया। इसी तरह एक वाक़या ये भी है कि सन 990 हिजरी में भी वक़ूए पजीर होने वाले वाक़े के मुताबिक एक गैर अरब बाशिंदा अपने हथियार के साथ मुताफ में दाखिल हो गया था और उसने हजरे अस्वद को एक ज़रब लगा दी। ऐन उसी वक्त एक अरब शहजादे नसीर मुताफ में मौजूद थे, जिसने उसे फौरन मौत के घाट उतार दिया। 1351 हिजरी के मुहर्रम के महीने में एक अफगान बाशिंदा सूफी अब्दुल गफ्फार मताफ में आया और उसने हजरे अस्वद का एक टुकड़ा तोड़कर बाहर निकाल दिया और काबा के गुलाफ का एक टुकड़ा चोरी कर डाला और उसने काबा की सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। काबा के गिर्द खड़े मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे मुनासिब कार्रवाई के बाद मौत की सजा सुनाई गई। मुलजिम ने यह भी इकरार किया कि जमजम के करीब जो सीढ़ी है उसमें से चांदी का एक टुकड़ा भी उसने काट लिया था। उसने कहा था कि मैं जानता हूँ कि ये काम नाजायज़ थे, लेकिन मैंने उनको तबरक के तौर पर अपने पास रखने के लिए चुराया था। चूँकि मुलजिम ने तीनों जुराइम का इकरार कर लिया था और जानबूझकर वो इन खौफनाक जुराइम का मुर्तकिब हुआ था, लिहाजा उसको सजाए मौत सुनाई गई ताकि दूसरों के लिए इबरत हो और बैतुल्लाह की हुर्मत कायम रहे। हजरे अस्वद का चोरी शुदा टुकड़ा बरामद करके सुल्तान इब्न सऊद की निगरानी में वापस अपनी जगह लगा दिया गया था। उसके बाद 28 रबीउल अव्वल सन 1351 हिजरी को शाह अब्दुल अजीज ने इस पत्थर को दोबारा काबा की दीवार में नस्ब किया जो उस अफगानी ने निकाला था। हजरे अस्वद उस वक्त एक मुकम्मल पत्थर की सूरत में नहीं, जैसा कि ये जन्नत से उतारा गया था, बल्कि इन तमाम हवादसात ने इस मुतबरक पत्थर को, जिसको बोसा देने के लिए अहले ईमान के दिल हर वक्त बेचैन रहते हैं, 8 टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। रवायात के मुताबिक सन 606 ईस्वी में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी, सैलाब ने काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने उसकी दोबारा तामीर की। लेकिन जब हजरे अस्वद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे ही नसीब हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया था कि हजरे अस्वद को एक चादर में रखा और तमाम सरदारान कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। जब सब ने मिलकर चादर को उठाया और उस मकाम पर पहुंचे जहां उसको रखना था, तो आपने अपने दस्ते मुबारक से उसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरे अस्वद पर चांदी चढ़ाई। 1268 ईस्वी में तर्के सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजरे अस्वद पर सोने का कवर बनवाया। उसी तरह 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने उसे दोबारा चांदी में तब्दील कर दिया। ये थी कहानी हजरे अस्वद की चोरी की, एक सच जो वक्त के साथ दब गया था। अगर आपको ये सफ़र दिलचस्प लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तबसरे में बताएं कि अगली हकीकत कौन सी होनी चाहिए। मिलते हैं एक और राज के साथ।